Have you ever wondered that if you have straight hair just like your father, or if you have the shape of your nose just like your mother? Some people have tall height just like their father. Some people are heavily built just like their mother. So these characters are transmitted from one generation to another generation. बच्चों कैसा है ना कि हम क्या कहते हैं कि अरे मुझे ये गुण मेरी मदर से मिला है, मुझे ये वाली क्वालिटी मेरे फादर से मिला है. सो ये जो कैरेक्टर्स जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? वो होते हैं डीएनए की वजह से, क्योंकि डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं और ये डीएनए आरएनए के साथ मिलकर कोई ना कोई प्रोटीन्स बनाता है और कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है. So how come these characters are transferred from one generation to another generation? It is all because of DNA and RNA. And that is what our topic for today is, that is nucleic acid. In today's lecture, we are going to discuss the chemical composition of DNA in detail. Now, to begin with nucleic acid, the first point that we are supposed to know is it was Friedrich Miescher. Friedrich Miescher was the scientist who discovered that कि न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है ना वो एसिडिक नेचर का है और उस मटेरियल को उसने नाम दिया था न्यूक्लिक एसिड. एंड दैट न्यूक्लिक एसिड इफ इट इज ribonucleic acid beta, then we call it as RNA. And if it is deoxy ribonucleic acid, then we call it as DNA. Now out of RNA and DNA, we are going to talk about DNA in detail for our lecture. DNA was discovered by Watson and Crick, who gave the double helix model of DNA, and it was Wilkin and Franklin who described and who took the X-ray diffraction photo of DNA. So they described the DNA with the help of X-ray diffraction studies, which we are writing in short beta. So it was Watson and Crick who described the double helix model of DNA, and it was Wilkin and Franklin who had worked on the X-ray diffraction photo of DNA. So basically the entire knowledge of DNA, the structure of DNA, okay, the credit goes to these four scientists, that is Watson, Crick, Wilkin and Franklin. Now DNA looks like a double helix. You imagine the ladder, okay, or a staircase of a water tank which is placed at a height. अब जो वाटर टैंक एक ऊंचाई पे रखा है उसका सीढ़ी देखा है तुमने, उसका सीढ़ी कैसे घूम के जाता है? The ladder goes in a twisted manner. Similar is the structure of DNA. DNA is called as a double-stranded structure. Now let us start with the very basic. Now whenever we say that DNA is a double-stranded means there are two strands. You see the yellow and the orange part. The yellow and the orange part. So there is two strands. There are two strands, double strand. Okay. Next, moving on. It is a double-stranded helix. That means these two strands, they are coiled around each other, just like this. That is why the language goes as it is double-stranded helical structure. Moving on, what is this double-stranded helical structure made up of? Our DNA and RNA both are made up of nucleotides. That is why DNA and RNA are called as polynucleotide structure. They are called as polynucleotide structure because they are made up of multiple nucleotide molecule which is repeated again and again. So now what we will do is we will understand the nucleotide structure in detail. As per definition, nucleotide
is the basic building block of DNA and RNA. See बेटा, understand this very wisely. बहुत ही easy topic है. The topic says that कि just like a building is ultimately made up of bricks. एक बिल्डिंग बनाने के लिए हम लोग बहुत सारे ब्रिक्स को एक के नीचे एक प्लेस करते हैं, तब जाके वॉल क्रिएट होता है और वॉल अल्टीमेटली पूरा का पूरा बिल्डिंग बना देता है बेटा. जस्ट लाइक आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स. ओके, उसी तरह से डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड. यानी ये जो पूरा का पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, लेट्स से दिस येलो वाला पट्टी, दिस इज मेड अप ऑफ मेनी न्यूक्लियोटाइड. लेट अस से दिस इज फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड. ओके बेटा, देन लेट्स से दिस इज सेकंड न्यूक्लियोटाइड, थर्ड न्यूक्लियोटाइड, okay, fourth nucleotide. Similarly this wala patti, first nucleotide, second nucleotide, third nucleotide, fourth nucleotide. That means this patti is made up of these block. Just like the building which is made up of bricks, the DNA is made up of nucleotide. So now we have to understand ki what is this nucleotide in detail. Okay, so point number 1, nucleotide itself is composed of 3 materials beta. Okay, what you have is a phosphate group, next a pentose sugar, and last nitrogen base. Listen very carefully है बेटा. अब ये कैसी बात हो गई मालूम है कि हमारा डीएनए है ना, अल्टीमेटली डीएनए की जो एक एक ईंट है, एक एक जो उसका बिल्डिंग ब्लॉक है वो न्यूक्लियोटाइड है. पर ये जो ईंट है ना, ये ईंट के अंदर भी 3 मटेरियल है. ये ईंट खुद, ये बिल्डिंग ब्लॉक खुद 3 केमिकल का बना हुआ है, जो है फॉस्फेट, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन कंपाउंड्स, जिसको हम नाइट्रोजन बेस भी बोलते हैं बेटा. अब इसमें सबसे मेन बात ये है कि एक एक कंपोनेंट को हम लोग डिटेल में समझ के लेंगे. ओके, सो इसमें न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो फॉस्फेट है, इट इज नथिंग बट phosphoric acid. That is the first thing that you are supposed to know. Second, pentose sugar. डीएनए की न्यूक्लियोटाइड में जो पेंटोज शुगर है, ओके, उसमें what we are supposed to know is it is consisting of 5 carbon. That is why it is called as pentose sugar. And this pentose sugar has oxygen at its tip. उसके टिप में यहाँ पर ऑक्सीजन है बेटा. And this corner में you have first carbon, so we write C1. Okay, here we have second carbon, that is C2. Third carbon C3. Fourth carbon C4. And बेटा fifth carbon is outside the ring here, C5. Okay, so remember this. अच्छा, another point that we are supposed to know is कि this pentose sugar in RNA, this sugar का formula is C5H10O5, whereas this same sugar in DNA, this pentose sugar का formula is C5H10O4. This pentose sugar in RNA is called as ribose sugar, and in DNA it is called as a deoxyribose sugar. See, you can very well make out beta why I am adding deoxy, because DNA के pentose sugar में एक ऑक्सीजन कम है, O4, और RNA में O5 था. So DNA और RNA में ना ये, this is one of the important difference between that you are supposed to know beta. अच्छा, moving on. So this pentose sugar में what do we notice? Point number 1, we notice that oxygen is at its tip and the 5th carbon is outside the ring. इतना याद रखो. Okay, so that is the information regarding pentose sugar. Okay, you can also call it as monosaccharide. I'll put it over here. Also referred as monosaccharide. Moving on. Okay, so we are through with phosphorus, that was phosphoric acid. Then we understood pentose sugar. Now let us take nitrogen base in detail. The nitrogen base
They are also called as heterocyclic compounds because they are available in the form of heterocyclic rings. These nitrogenous base, they belong to two families. Number one, purine, and number two, pyrimidine. Purine are double ring compounds, whereas pyrimidine is a single ring compound. Now, when we say double ring compound, look at this structure, beta. You see double ring, you see double ring. So these two are purines. You see single ring and single ring. So these two are pyrimidine. Purines are double ring compound and pyrimidines are single ring compound. And these are basically nitrogenous compounds, beta. अब DNA में जो दो टाइप के प्यूरिन्स होते हैं ना, उसके एग्जाम्पल याद रखना. प्यूरिन्स में व्हाट यू हैव इज, वन एग्जाम्पल इज एडेनिन and the other example is guanine. Whereas pyrimidine में one example is thymine, another example is cytosine. However, there is one more pyrimidine which is called as uracil. But regarding uracil, remember that uracil you will find only and only in RNA. RNA में it's a rule of 2. Remember 2. That means thymine is replaced by uracil. देखो कैसा होता है ना बच्चों, DNA में और RNA में दोनों में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, क्योंकि DNA और RNA दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स के बने हैं. दोनों का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो न्यूक्लियोटाइड है. अच्छा, बट न्यूक्लियोटाइड के अंदर वो बिल्डिंग ब्लॉक के अंदर फॉस्फेट, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस निकला. फॉस्फेट का पार्ट दोनों में सेम है. पेंटोज शुगर डीएनए और आरएनए में पता चला कि आरएनए के पास एक ऑक्सीजन ज्यादा है पेंटोज शुगर में. फिर नाइट्रोजन बेस में ये पता चलता है कि डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन होता है और आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, यूरासिल और साइटोसिन होता है. देयर इज नो थाइमिन. सो रिमेंबर आरएनए में इट्स अ रूल ऑफ 2, PU2, that says thymine is replaced by uracil. Okay, acha, moving on. Now adenine and guanine are the example of purine which are double ring compound. You see this compound over here, madam? Okay, this is adenine, right? Then you see the next compound, this is guanine. So these are double ring compound. Then we see this is single ring compound which is thymine. The last one is cytosine. Okay, now another important point which we are supposed to know in DNA is, DNA में कैसा होता है ना कि adenine always base pairs with thymine and vice versa. यानी डीएनए में हमेशा जहां जहां पर एडेनिन आएगा उसके सामने हमेशा थाइमिन आता है. एंड ग्वानिन ऑलवेज बेस पेयर्स विद साइटोसिन. एडेनिन बेस पेयर्स विद थाइमिन विद डबल हाइड्रोजन बॉन्ड एंड ग्वानिन बेस पेयर्स विद साइटोसिन विद ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड. बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से याद रखो कि डीएनए में जब भी कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं ना तो इस अंदाज में जुड़ते हैं. एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ ही जुड़ेगा, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ ही जुड़ेगा. चाहिए तो इसको हम लोग इजी लैंग्वेज में बोलते हैं दैट एडेनिन ऑलवेज गेट्स मैरिड टू थाइमिन. एडेनिन लव्स थाइमिन and they get married how many times? They get married 2 times, double hydrogen bond. Guanine always gets married to cytosine and they get married how many times? 3 times. 3 बार शादी होगा. कबूल है, कबूल है, कबूल है, याद रख. ओके, अच्छा, अब जब मैं बोल रहा हूँ कि एडेनिन गेट्स मैरिड टू थाइमिन, दैट मींस थाइमिन गेट्स मैरिड टू एडेनिन, वाइस वर्सा, उल्टा भी होगा ना. अगर एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ रहा है, जहां जहां एडेनिन आएगा उसके सामने हमेशा थाइमिन आएगा, तो जहां जहां पर थाइमिन आएगा उसके सामने एडेनिन आएगा ना बेटा. ओके, तो ये एक रूल याद रखो अच्छे से.
okay, which is very 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 important so as to understand the structure of DNA in detail. Chalo, now moving on. When we see the molecular structure of DNA, then what we find is कि हाँ ऐसा दो पट्टी है जो आपस में लिपटा हुआ है. अब ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है विच इज कॉइल्ड है. अब ये दोनों को हम लोग कर देते हैं अनकॉइल्ड. ओके, सो द स्ट्रक्चर विच वाज कॉइल्ड अराउंड ईच अदर, अब हम लोग ने उसको अनकॉइल कर दिया. अनकॉइल करने के बाद इट लुक्स लाइक दिस. तो एक पट्टी यहाँ पर है और एक पट्टी यहाँ पर है, एंड वी अंडरस्टैंड दैट इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड. Nucleotide is the basic building block. So let's say this tukda, this is one nucleotide. And chemically what is nucleotide? It is phosphate plus pentose sugar plus nitrogen base. Okay, so इस वाले strand का, okay, ये जो nucleotides है, समझो 4 building block है, okay, उसको हम लोग diagrammatically यहाँ पर represent कर रहे हैं. Okay, now we will not take 4, it will not fit. Let's say we will take 3 nucleotides. वैसे ही फिर इस वाले स्ट्रैंड के 3 न्यूक्लियोटाइड को यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, अब न्यूक्लियोटाइड होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? फॉस्फेट, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस. तो सबसे पहले पेंटोज शुगर बना लेते हैं. नाउ लेट्स से सपोज फॉर एग्जांपल वी आर फॉलोइंग दिस एज द फर्स्ट पेंटोज शुगर, 5 कार्बन का बेटा. ओके, देन हियर कम्स सेकंड पेंटोज शुगर. Okay, fine. Moving on. Next. Okay. Now understand my point, बेटा. हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि डीएनए का एक स्ट्रैंड है, एक पट्टी है, उसके 3 न्यूक्लियोटाइड है. न्यूक्लियोटाइड में ये 3 कंपाउंड्स है, उसमें से हम लोग ने पेंटोज शुगर ड्रॉ कर दिया. Okay, so what we see is in one of the strand, the pentose sugar का oxygen is pointing in the upward direction, and that particular strand is called as ascending strand. You understand why it is called as ascending strand? Because the oxygen of this pentose sugar, S I am writing, okay? So this pentose sugar का oxygen is pointing in upward direction. That is why it is called as ascending strand. Okay. अब यहाँ के 3 न्यूक्लियोटाइड के पेंटोज शुगर ड्रॉ करते हैं बेटा. Let us say this is the first sugar. Second. And the third pentose sugar. Okay. Now this is the orange वाला पट्टी है बेटा. So I am writing with orange chalk. So ये एक sugar, second and third. अच्छा, ये sugar का जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन is always at the tip. यहाँ पढ़ा ना हम लोग ने बेटा. Okay. So इसका ऑक्सीजन is pointing in which direction? इसका ऑक्सीजन is pointing in downward direction बेटा. So that is why this strand is called as descending strand. Okay. Now what we understand is कि DNA के एक strand का ऑक्सीजन is pointing in upward direction, that is called as ascending strand, और दूसरे strand का ऑक्सीजन is pointing in downward direction. So what we understand is कि the 2 strands of DNA, if we go as per language, the 2 strands of DNA are anti-parallel. See why we say anti-parallel? Parallel means they are going along with each other. But beta, why do we call it as anti? Anti means against. That means opposite. Okay, so you see the oxygen which is pointing in opposite direction, ascending and descending strand. That is the reason why the 2 strands of DNA are said to be anti-parallel. Anyway, moving on. अब हम लोग को एक न्यूक्लियोटाइड पूरा डिस्क्राइब करना है. अब उस न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या है? फॉस्फेट, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस, जिसमें से हम लोग ने पेंटोज शुगर बना दिया. अब रहा बचा क्या? फॉस्फेट. ओके, सो लेट अस पुट फॉस्फेट बेटा. सो दिस इज द फॉस्फेट नंबर 1. सो वी आर राइटिंग P, and remember that phosphate is nothing but it is phosphoric acid, that is H3PO4. ठीक है. सो अब तीनों भी न्यूक्लियोटाइड्स के फॉस्फेट भी बना दिया हम लोग ने. सो फॉस्फेट और पेंटोज शुगर हो गए.
अच्छा, अब यहाँ के जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं इसका भी फॉस्फेट ड्रॉ कर लेते बेटा। सो दिस इज द फॉस्फेट। ओके, अब बचा क्या, इस वाले न्यूक्लियोटाइड में, पहले वाले न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट हो गया, शुगर हो गया, अब बचा इसका नाइट्रोजन बेस। सो लेट अस से द नाइट्रोजन बेस ओवर हियर, वी ड्रॉ इट विथ ब्लॉक। So the yellow block represents the yellow strand बेटा। ओके, एंड सिमिलरली इस वाले स्ट्रैंड का, यानी ये ऑरेंज वाले पट्टी का नाइट्रोजनस बेस वी विल रिप्रेजेंट विथ ऑरेंज ब्लॉक बेटा। सो द ऑरेंज ब्लॉक इंडिकेट्स द नाइट्रोजनस बेस फॉर द अदर स्ट्रैंड। अच्छा, अब ना मेरी बात एकदम ध्यान से सुनते जा बेटा। ये सब के सब है ना नाइट्रोजनस बेस है, यानी नाइट्रोजनस कंपाउंड है, और नाइट्रोजनस कंपाउंड में ना 4 ही मेन है डीएनए में, ATGC शॉर्ट में याद रख, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। एडेनिन ऑलवेज गेट्स मैरिड टू थाइमिन। ओके, आत्माराम तुकाराम भिड़े, चंपकलाल गड़ा, उसका पोता टप्पू, टप्पू मींस ट्रिपल बॉन्ड। ओके, आत्माराम तुकाराम भिड़े, आत्माराम इज एडेनिन, तुकाराम is thymine, भिड़े डबल बॉन्ड। ओके, चंपकलाल is cytosine, गड़ा is guanine, टप्पू is ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे याद रखो इसको अच्छे से। जैसा कि हमने बात किया था, एडेनिन हमेशा थाइमिन से शादी करेगा, गुआनिन हमेशा साइटोसिन से शादी करेगा। अब डीएनए में कैसा होता है ना कि ये नाइट्रोजनस कंपाउंड्स है ना, ये रैंडम होते हैं कैसे भी। सो लेट्स से रैंडमली मैं यहाँ पर A लिख देता हूँ बेटा, लेट्स से रैंडमली मैंने यहाँ C लिख दिया, लेट्स से रैंडमली मैंने यहाँ G लिख दिया बेटा। ओके, अब दिमाग लगा, अगर एक तरफ एडेनिन आया है तो एडेनिन के सामने कौन आना चाहिए, आत्माराम तुकाराम ना बेटा, राइट। अब यहाँ चंपकलाल आया है, C आया है, तो उसके सामने गड़ा, तो साइटोसिन के सामने यू विल ऑलवेज फाइंड गुआनिन, गुआनिन आया तो उसके सामने हमेशा साइटोसिन। सो रिमेंबर, एडेनिन ऑलवेज गेट्स मैरिड टू थाइमिन, हाउ मेनी टाइम्स, 2 times. That means adenine always base pairs with thymine with double weak hydrogen bond. Remember that. Okay. Next, guanine always base pairs with cytosine with how many? With triple hydrogen bonds. Okay. Guanine base pairs with cytosine with how many bonds? Triple bond. So इसको अच्छे से बाय हार्ट कर लो बच्चों। ओके, कि डीएनए में कैसा है ना कि हमेशा एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है और गुआनिन साइटोसिन से जुड़ता है। ओके, और एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब ना फॉस्फोरस का एक स्पेशल पॉइंट तुमको बताना होगा। फॉस्फोरस का कैसा है ना कि फॉस्फोरस एक शुगर के 5वें कार्बन को जुड़ता है और दूसरे शुगर के 3रे कार्बन को जुड़ता है। रिमेंबर दिस रूल फॉर फॉस्फोरस नाउ। So phosphorus binds to 5th carbon of one sugar and it binds to 3rd carbon of another sugar. Carbon, ये देख, जब मैं 5th carbon बोल रहा हूँ ना, you will always think about this point which is outside the ring. And when we are talking about 3rd carbon, you are always thinking about this point. So हर sugar में बेटा now you have to focus at this point and at this point. Okay. Now check this phosphorus. Now the phosphorus has to bind to 5th कार्बन ऑफ वन शुगर। सो ये शुगर से चालू करते हैं। ओके, अब ये शुगर का बेटा, दिस इज द फर्स्ट कार्बन, राइट, दिस इज द सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड 5th कार्बन इज समवेयर हियर आउटसाइड द रिंग, करेक्ट। ओके, सो दिस phosphorus if I have to join to this particular sugar, then I cannot join this phosphorus directly like this बेटा। If I join it directly like this, then the phosphorus is getting attached to the 4th carbon. ये commonest mistake है, इसलिए this phosphorus का bonding I will always show it with a crooked line. अच्छा, अब मैंने लाइन को बेंड क्यों किया? Because I am trying to show this point that the phosphorus is getting bound to the 5th carbon. Very important बेटा। अब ये फॉस्फोरस को इस शुगर से जोड़ना है, डायरेक्टली जोड़ू क्या? नहीं, डायरेक्टली जोड़ेगा तो 4th कार्बन पे जुड़ेगा बेटा, इसलिए ये फॉस्फोरस को मैं बेंट लाइन से ज्वाइन करूंगा। ये फॉस्फोरस को मैं बेंट लाइन से ज्वाइन कर रहा हूं बेटा। सो एवरीवेयर द बेंट लाइन इंडिकेट्स कि ये 5th कार्बन है बेटा।
सेम यहां पर उल्टा इमेजिन करो कि ये ऑक्सीजन बेटा, सो दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। अब यहां भी फास्फोरस को अगर डायरेक्टली हम लोग ने ज्वाइन कर दिया तो ये फोर्थ कार्बन से जुड़ेगा ना, जबकि रूल क्या बोलता है कि फास्फोरस फिफ्थ कार्बन को जुड़ना चाहिए बेटा, और फिफ्थ कार्बन रिंग के बाहर है, यही वाला शुगर उल्टा बनाया बेटा मैंने यहाँ। ओके, सो यहां फास्फोरस को हम लोग कैसे अटैच करेंगे, बेंट लाइन के साथ। अब ये बेंट लाइन का ये जो पॉइंट है ना, दिस पॉइंट इंडिकेट्स ये पांचवा कार्बन है बेटा, राइट। अच्छा, उसी तरह से देख, ये फास्फोरस को इस शुगर से तेरे को जोड़ना है, तो तू अगर इसको डायरेक्टली जोड़ देगा तो क्या प्रॉब्लम होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कार्बन को जोड़ेगा, जबकि वो फिफ्थ कार्बन को जोड़ना चाहिए बेटा। इसलिए यहाँ फास्फोरस को वी आर गोइंग टू जॉइन इट विद अ बेंट लाइन लाइक दिस। ओके, हियर आल्सो विद अ बेंट लाइन लाइक दिस। नाउ एवरीवेयर द बेंट लाइन इंडिकेट्स कि दिस इज द फिफ्थ कार्बन, ये वाला। ओके, दिस पॉइंट इज द फिफ्थ कार्बन बेटा। सो देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि फास्फोरस इज गेटिंग बाउंड टू द फिफ्थ कार्बन। नाउ अटैच फास्फोरस टू द थर्ड कार्बन। कम टू दिस डायग्राम, वन सेकंड बेटा। ओके, अब ये फास्फोरस इसके तो फिफ्थ कार्बन को जुड़ गया। अब ये वाले शुगर को देखो, ये इसका फर्स्ट कार्बन बेटा, ये सेकंड कार्बन और ये थर्ड कार्बन। सो फास्फोरस इस शुगर के फिफ्थ कार्बन को जुड़ गया, अब इस वाले शुगर के थर्ड कार्बन को जुड़ेगा बेटा। सो यहां से लेके यहां वी आर गोइंग टू कनेक्ट इट, यू गेट दैट। अब ये फास्फोरस इसके फिफ्थ कार्बन को जुड़ गया, अब इस वाले शुगर के थर्ड कार्बन को जुड़ेगा, यानी यहां जुड़ेगा ना बेटा। So that is how we are going to connect. Moving on, सेम चीज यहाँ अप्लाई करो कि ये फास्फोरस इस शुगर के फिफ्थ कार्बन को जुड़ गया, ये भी इस शुगर के फिफ्थ कार्बन को जुड़ गया, अब ये इस शुगर के तीसरे कार्बन को जुड़ेगा। सो यहाँ पे यू आर गोइंग टू अटैच इट डायरेक्टली लाइक दिस। ओके, वैसे यहाँ पे काउंट करो, दिस विल बी द फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन। सो फास्फोरस हैज टू कम टू थर्ड कार्बन, जॉइन इट लाइक दिस। ये समझा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, फास्फोरस फिफ्थ और थर्ड कार्बन को इस स्टाइल में जुड़ता है बेटा। ओके, अच्छा, अब बॉन्ड्स के बारे में भी बात करते जाते हैं साइमल्टेनियसली ताकि इजी हो जाएगा। अब ये फास्फोरस जो शुगर को जुड़ रहा है ना, ये फास्फोरस और शुगर के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसको बोलते हैं ईस्टर लिंकेज और ईस्टर बॉन्ड। सो व्हाट यू सी इज कि ये फास्फोरस और शुगर, दिस बॉन्ड इज ईस्टर बॉन्ड, दिस इज आल्सो ईस्टर बॉन्ड। सिंस देयर इज ईस्टर बॉन्ड ऑन ईदर साइड, दैट इज व्हाई बेटा दिस एंड दिस टुगेदर इज कॉल्ड एज फॉस्फो डाइईस्टर बॉन्ड, और यू कैन आल्सो कॉल इट एज फॉस्फो डाइईस्टर लिंकेज, यानी ये पूरा का पूरा बॉन्ड और ये। Similarly, this and this is phosphodiester linkage. Okay, this and this put together is phosphodiester linkage. This and this is phosphodiester linkage. Okay, so that is the first point that you are supposed to know. Acha, second point, the nitrogenous compound is attached to the sugar. So let us form a bond over here. The nitrogenous compound is attached to the sugar, right? This nitrogenous compound is attached to its own sugar. Now this bond is called as glycosidic bonds. Okay, right? So we will attach everywhere. So this is glycosidic bond, beta. This is also glycosidic bond. Glycosidic bond, glycosidic bond. Let's put the theory here. Glycosidic bond says that the nitrogenous compound is attached to the sugar. Okay, then the last point we have already spoken here in the important point, that the nitrogenous compound is attached to another nitrogenous compound with the help of these bonds, and these are hydrogen bonds. That means guanine और cytosine के बीच में ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये कौन सा बॉन्ड है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, सो दिस इज ऑल्सो हाइड्रोजन बॉन्ड, and this also represents hydrogen bonds. ओके, सो बॉन्ड से रिलेटेड ये सारे के सारे पॉइंट्स हमको अच्छे से याद होने चाहिए। अच्छा, मूविंग ऑन, अब इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं बेटा। ओके, डीएनए का ना वन स्पाइरल ऑफ डीएनए का लेंथ इफ वी मेजर, देन इट इज 34 एंगस्ट्रॉम।
That means you start from one point. Okay, you start from one point, you start ascending this stairs, ऊपर चढ़ते जाओ और उसी पॉइंट पे वापस आओ. यानी एक स्पाइरल का लेंथ अगर आप मापोगे, मेजर करोगे, सो इट इज 34 एंगस्ट्रॉम. ये एक याद रखो. अच्छा, मूविंग ऑन नेक्स्ट. उस एक स्पाइरल के अंदर बेटा there are 10 base pairs. What are base pairs? Base pair, base means nitrogenous base and pair means उनका जोड़ी यानी हाइड्रोजन बॉन्ड. So you see बेटा, this is one base pair. यानी एक शादी हुआ guanine और cytosine का, another base pair. Okay, दूसरा शादी, तीसरा शादी, ऐसा 10 base pair. So easy language में when the DNA goes spiral like this, okay, राइट. सो एक स्पाइरल का लेंथ 34 एंगस्ट्रॉम है और उस 34 एंगस्ट्रॉम में 10 बेस पेयर है, यानी 10 ऐसे लैडर हैं. ओके, राइट. सो रिमेंबर देयर आर 10 बेस पेयर. अच्छा, नाउ व्हेन वी कैलकुलेट दीज टू कंडीशंस को कंपेयर करें और कैलकुलेट करें, देन व्हाट वी फाइंड इज द डिस्टेंस बिटवीन two consecutive base pairs will be 34 divided by 10, so that will be 3.4 angstrom. अब इजी लैंग्वेज लेते हैं. डीएनए ना ऐसा कॉइल्ड है, ठीक है. लेट्स से सपोज ये पॉइंट से चालू किया और हम लोग घूम के वापस वही पॉइंट पे है. अब इसको हमने अनकॉइल किया, सो इट इज अ स्ट्रेट लैडर. ओके, सो यहाँ से लेके सपोज यहाँ तक एक स्पाइरल हो रहा था उसका, और उस स्पाइरल के अंदर 10 बेस पेयर है. ये 1 2 3 4 5 6. ओके, लेट्स से 7 8 9 10. अब सुन मेरी बात ध्यान से. तो अब पॉइंट क्या बोल रहा है कि एक स्पाइरल का लेंथ 34 एंगस्ट्रॉम. ओके, और उस स्पाइरल में ऐसे 10 सीढ़ी है, 10 लैडर है. तो बेटा दो लैडर के बीच में, दो कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 34 डिवाइड बाय 10 करेंगे ना, तो 3.4 एंगस्ट्रॉम. इसको हम लोग ये भी कहते हैं द राइज पर बेस पेयर. ओके, द राइज पर बेस पेयर इज 3.4 एंगस्ट्रॉम. In a NEET exam, they might ask this in terms of nanometers. So you have to shift the decimal. 34 angstrom will become 3.4 nanometer. Okay, and here the distance between two consecutive base pair was 3.4 angstrom. So you will shift the decimal. That should be 0.34 nanometer. Why this? Because remember the information that 1 angstrom is a 10 raised to minus 10 meter. And 1 nanometer is 10 raised to minus 9 meter. ओके बेटा. अच्छा, नेक्स्ट फिर डीएनए का अगर हम लोग इंटरनली अंदर से डायमीटर अगर मेजर करें ना, ओके, देन व्हाट वी विल नोटिस इज द डायमीटर ऑफ डीएनए विल पुट हियर. बोर्ड पूरा भर गया है, पता ही नहीं चल रहा है किधर लिखना मांगता है, पर तू ध्यान देते जा, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है. द डायमीटर ऑफ डीएनए इज 20 एंगस्ट्रॉम. इसको भी नैनोमीटर में कन्वर्ट करोगे, एक डेसिमल शिफ्ट करोगे, दैट इज 2 नैनोमीटर. ओके, सो ये इंफॉर्मेशन भी बाय हार्ट करो. यानी डीएनए जब ऐसा स्पाइरल ऊपर जाता है ना, तो अंदर से उसका डायमीटर मेजर करेगा ना, तो 20 एंगस्ट्रॉम निकलेगा बेटा. ओके, वही चीज को अनकॉइल करके देखेंगे, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना निकलेगा इसका? 20 एंगस्ट्रॉम बेटा. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट. अच्छा, दूसरी बात, वन स्पाइरल को ना पिच भी बोलते हैं. ये एमसीक्यू में तुझे पूछेंगे कि एक पिच का लेंथ कितना है, तो याद रखना 34 एंगस्ट्रॉम और 3.4 नैनोमीटर. अच्छा, अब पिच के ऊपर से ही एक और क्वेश्चन आता है, पिच एंगल. द पिच एंगल ऑफ डीएनए इज 36 डिग्री. अब पिच एंगल का मतलब देखो क्या होता है. समझो ये जो अनकॉइल्ड डीएनए है, ये सीढ़ी को मैंने बाहर निकाला, ठीक है, राइट. ये उसका पहला दादर है, ये दूसरा दादर है. फोन बज रहा है, तू ध्यान मत दे, तू वीडियो पे ध्यान दे. ओके, ये पहला दादर, ये दूसरा दादर, ये तीसरा दादर. ओके, राइट. अब डीएनए कैसा है ना कि डीएनए तो ऐसा स्ट्रेट नहीं है बेटा, डीएनए तो कॉइल्ड है ना. ओके, तो जो पहला दादर है, ओके, राइट, अब इसके ऊपर जो दूसरा बेस पेयर, दूसरा दादर जो आएगा, सेकेंड लैडर is not just parallel to this. Okay, so the second ladder is 36 degree deflected as compared to the previous ladder. That means पहला ladder ऐसा है,
सो दूसरा लैडर कैसा होगा ना, ये प्रीवियस के मुकाबले 36 डिग्री पे टर्न लेगा, ये समझा। अब इसके ऊपर जो सीढ़ी चढ़ेगा, सपोज तू सीढ़ी चढ़ते जा रहा है, इसके ऊपर जो सीढ़ी होगी ना बेटा वो और 36 डिग्री पे डिफ्लेक्टेड होगी, यानी इसके मुकाबले और 36 डिग्री पे। देन द नेक्स्ट लैडर विल बी अगेन डिफ्लेक्टेड एट 36 डिग्री, नेक्स्ट लैडर अगेन एट 36 डिग्री। ऐसा 10 बार अगर 36 का डिफ्लेक्शन आएगा तो 360 डिग्री हो जाएगा। 360 डिग्री मींस व्हाट, घूम के यू कम बैक टू द सेम पॉइंट। तो देखो ये दोनों पॉइंट कैसे कनेक्टेड है कि एक स्पाइरल में 10 बेस पेयर है, यानी डीएनए के एक स्पाइरल में, यानी वो जो सीढ़ी है ना ऐसी जा रही है, ओके। जिस पॉइंट से मैं चालू किया, अगर सीढ़ी चढ़ते गया मैं ऊपर 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 और घूम के मैं उसी पॉइंट पे आया, तो उतने एक स्पाइरल में 10 सीढ़ी है, देयर आर 10 बेस पेयर, और एक सीढ़ी दूसरे सीढ़ी के मुकाबले, ओके, द नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव लैडर इज 36 डिग्री डिफ्लेक्टेड टू द प्रीवियस लैडर, उसको हम लोग बोलते हैं पिच एंगल। इमेजिन करो इसको अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके राइट। और ये जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो डीएनए हम लोग पढ़ रहे हैं ना बेटा, इस डीएनए को हम लोग बोलेंगे दिस इज बी डीएनए, व्हिच इज नथिंग बट इट इज बायोलॉजिकल डीएनए। ऐसे ही ना ए डीएनए, जेड डीएनए, दे आर नेम्ड आफ्टर इंग्लिश अल्फाबेट्स डिपेंडिंग अपॉन इट्स वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स। सो ए डीएनए जो है, जेड डीएनए जो है, उसका है ना पिच, उसका पिच एंगल, उसके डायमेंशंस अलग अलग होते हैं बेटा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट further classification is done, which I'll teach you in advanced NEET lecture. For the basic lecture, just pay attention to what I am saying right now. Okay? Acha, moving on. So here what we find is the pitch angle is 36 degree. Extremely important. Okay? Acha, next thing that you have to remember is in DNA, adenine base pairs with thymine, guanine base pairs with cytosine. So there is a scientist who is called as Chargaff. He has given a law which is called as Chargaff's rule, or you can say Chargaff's law. So Chargaff's rule says that A plus T divided by G plus C is equal to 1. Okay? A plus T divided by G plus C is always equal to 1. Oops, sorry. This goes as A plus G डिवाइड बाय टी प्लस सी। नाउ ए प्लस जी क्या होगा, देख सिंपल दिमाग लगा, ए और जी मिलाकर क्या हो रहा है, प्यूरिन, यानी न्यूमरेटर में क्या लिखा है उसने, प्यूरिन, ओके। और टी प्लस सी क्या होगा, टी प्लस सी क्या है, पायरिमिडिन। सो डिनोमिनेटर में क्या है, पायरिमिडिन। सो व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज द रेशियो ऑफ प्यूरिन इज टू पायरिमिडिन इज ऑलवेज 1। और जाहिर सी बात है ना, ये सब छोड़, चारगैस रूल ये सब छोड़, यू जस्ट पे अटेंशन टू द फॉर्मूला ओवर हियर। एडेनिन हमेशा थाइमिन से शादी करेगा, ओके, गुआनिन हमेशा साइटोसिन से शादी करेगा। सो एक मंडप में जितना दूल्हा होएगा उतनी ही दुल्हन होगी ना। अब ये शादी को देख, ये मंडप को देख ध्यान से, ओके। एक दूल्हा एक दुल्हन से शादी किया, दूसरा दूल्हा दूसरे दुल्हन से शादी किया, ओके। सो अल्टीमेटली कितने दूल्हे हैं, 2, यानी प्यूरिन कितने हैं, 2, तो पायरिमिडिन कितने हैं, 2। सो 2 divided by 2 will be what, 1. So the ratio of purine to pyrimidine is always 1 and it is constant for a particular species. This is called as Chargaff's rule. Remember that बेटा, okay? So well बच्चों, अब यहाँ पे एक बात और इंटरेस्टिंग जो हमको समझनी चाहिए वो ये है कि ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ना, ओके राइट, ये पूरा का पूरा केमिकल स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया, और ये जो डायग्राम है ना, दिस इज द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अच्छा, केमिकल स्ट्रक्चर में हम लोग ने क्या देखा, जैसे पहला न्यूक्लियोटाइड, nucleotide was phosphate, sugar and nitrogen base. That means phosphate, sugar and nitrogen base. Now I will cover this up with dotted lines. Now understand this, where phosphate, sugar, nitrogen base is just this piece, one piece. Okay? वैसे ही ये ऑरेंज वाले का एक छोटा सा पीस, ये ऊपर वाला, इज दिस सेक्शन, जहां पे यू आर टेकिंग फॉस्फेट, शुगर एंड नाइट्रोजन बेस। तो देखना, दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग कि जिस तरह से एक बिल्डिंग ब्रिक्स का बना होता है ना, वैसे डीएनए इज मेड अप ऑफ दीस बिल्डिंग ब्लॉक्स व्हिच आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड। तो दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड, दिस इज अनदर न्यूक्लियोटाइड, दिस इज अनदर न्यूक्लियोटाइड, और वैसे ही सामने वाले स्ट्रैंड में यू सी अनदर न्यूक्लियोटाइड। And you see the base pairing is complementary. Adenine base pairs with thymine, guanine base pairs with cytosine. Okay? अच्छा, और इसमें भी adenine looks like this,
यानी एक्चुअल एडेनिन ड्रॉ करेगा it will the diagram will look very complicated. Thymine looks like this बेटा. Okay, so imagine कि ये पूरा का पूरा जो केमिकल स्ट्रक्चर है ना with adenine, guanine and thymine, cytosine उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है. That is one strand, that is this पट्टी. Okay, और ये पूरा का पूरा ना okay with all the chemical formula is another strand. और ये जब आपस में ट्विस्ट करता है ना केमिकल स्ट्रक्चर, that is what is forming our DNA. And then the DNA का molecular structure looks like this. So that's a biological diagram you can say, and this is a chemical diagram. And we all know, and we all appreciate. Sir, biology is better. अच्छा दिख रहा है. Sir, भयंकर दिख रहा है. Okay? अच्छा, अब ये डायग्राम को जब यहाँ प्लेस करें ना, तो इसमें एक MCQ ये याद रखना है कि DNA का बैकबोन is formed by sugar phosphate. यानी ये जो phosphate, sugar, वो ऐसा है यहाँ पर. Phosphate, sugar. ऑरेंज वाले स्टैंड में फॉस्फेट शुगर यानी डीएनए का जो मेन स्ट्रक्चर है, उसकी मेन जो ढांचा है ना उसका, वो शुगर फॉस्फेट की वजह से बनता है. ये क्या होगा. और जहां पे ये स्केलेटन एक दूसरे के नजदीक आता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं माइनर ग्रूव. और जहां पर ये एक दूसरे से काफी दूर जाता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं मेजर ग्रूव. तो यहाँ तो देख सकता है ना, ये स्ट्रक्चर के बीच में कितना जगह है. सो दैट इज कॉल्ड एज मेजर ग्रूव. और यहाँ दोनों भी जो स्केलेटन है, दोनों भी जो ढांचा है एक दूसरे के काफी नजदीक है. सो दैट इज कॉल्ड एज माइनर ग्रूव. ये याद रखने का बेटा. अच्छा, दूसरी बात, अब शुगर फॉस्फेट तो हो गया. अब नाइट्रोजन कंपाउंड जो है ना, यानी ये पूरा जो पट्टी है ना, ये शुगर फॉस्फेट से बना है. फॉस्फेट शुगर, ये भी फॉस्फेट शुगर. अब नाइट्रोजन कंपाउंड्स का अंदर रहते हैं. फॉस्फेट शुगर के बाद यहाँ कहीं एडेनिन रहेगा. So the point says that nitrogen compound is placed perpendicular to the basic ढांचा, to the basic skeleton. क्योंकि फॉस्फेट शुगर से तो एक स्टैंड बन रहा है. फॉस्फेट शुगर से दूसरा स्टैंड बन रहा है. और नाइट्रोजन कंपाउंड से ना वो अंदर की तरफ है. तो समझो यहाँ एडेनिन है, यहाँ थाइमिन है. So ये एडेनिन इस स्केलेटल स्ट्रक्चर को परपेंडिकुलर है. So that's how the entire ladder gets ready. And then you have to just twist this ladder so as to understand how the DNA actually looks. So that is the real structure of DNA बच्चों. Okay, you take a screenshot of this, फोटो ले लो इसका. Done? Okay बच्चों. So that's all for this particular lecture. Remember, biology is just an amazing subject. I will keep saying this because this subject means a lot to me. Okay, right? See how DNA actually looks like, and understand the chemical constituent of it and how actually it looks like. Okay, right? And these structures are responsible for transmitting characters from one generation to another. How the character undergoes transmission, what is the mechanism, that I'll teach. You will get blown away beta. Biology is really amazing. Read bio, bleed bio, yo-yo bio. Thank you, bacha.